नमस्कार मित्रों। भारतीय विद्यापीठ और कम्युनिकेशन टुडे के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला की 204वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हमारी परंपरा है, किसी भी एपिसोड को शुरू करने के पहले हम सरस्वती वंदना से अपनी शुरुआत करते हैं और सरस्वती वंदना प्रस्तुति का दायित्व सदा की तरह निर्वहन कर रही हैं प्रियंका सिंह, जो भारतीय विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं। अपने इंस्टीट्यूट के जनसंपर्क संबंधी दायित्वों का भी वो निर्वहन कर रही हैं। एक शिक्षक के रूप में जो अकादमिक दायित्व होते हैं, प्रशासनिक दायित्व होते हैं, उनका भी वो बखूबी निर्वहन कर रही हैं। प्रियंका जी ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय से रेडियो में अपना मास्टर्स उपाधि प्राप्त की है। स्पेशलाइजेशन आपका रेडियो रहा है और पॉडकास्टिंग पर आप इस समय पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड हैं। मैं अनुरोध करूंगा उनसे कि वे सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। प्रियंका जी। Thank you so much, sir. So it always gives us immense pleasure to present Saraswati Vandana in this media webinar series. So let's remember Ma Saraswati through this Vandana. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेकी रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, फूले खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेकी रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चले नेकी रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. By this, we are thrilled to welcome you all in our 204th media webinar on the topic TV at the rate 100, television in the age of streaming and smartphone. With pride, we announce that the Communication Today, which is a 30-year-old bilingual media quarterly journal, considered as a lighthouse of media professionals, and Bharatiya Vidyapeeth Institute of Computer Application and Management, New Delhi, which is 60-year-old institutions, have hands joined together to organize this media lecture series in online mode. So, we are going to discuss on the theme that reflects the remarkable journey of television as it completes nearly a century of existence, while also examining its evolving role in the era dominating by digital media, streaming platform, and mobile technology. Televisions, once considered that the most powerful medium of mass communication, is now undergoing a significant consumption and transformation due to rapid rise of OTT platforms, social media, and smartphone-based content. This webinar aims to critically enhance to explore how traditional television has adapted to these technology disruption, the challenges, and related topics. So the session will also feature distinguished speaker from the field of media and communication. Dr. Om Prakash Sir, Director of DD Rajasthan, Jaipur, brings with him extensive experience from public service broadcasting, will also provide valuable insight into the role of television in regional and national context. His perspective is expected to highlight how traditional broadcasters are adapting to new age digital competition while continuing to serve public interest. Joining him in the another speaker for today's webinar, Professor Mrinal Chatterjee sir, renowned and academician and former regional director of IAMC, Odisha.
With this deep understanding of media education and industry trends, he is also likely to offer us critical and analytical viewpoint on the same topic. So by this, I welcome both of you in this media webinar series. Thank you so much. So you are muted. बहुत बहुत आभार आपका इस प्रस्तुति के लिए और स्वागत अभिनंदन की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ये एक वर्चुअल फोरम है जहां हम आयोजन कर रहे हैं, तो वर्चुअल तरीके से ही, आभासी तरीके से ही हम स्वागत अनुरोध कि आज के हमारे दोनों विशेषज्ञ डीडी राजस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश तथा भारतीय जनसंचार संस्थान ढेंकानाल के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक प्रोफेसर मृणाल चटर्जी का ई बुके से स्वागत अभिनंदन करें। Sir, once again, thank you so much for this beautiful presentation of e-bouquet. Sir, this is just an honor of gratitude, happiness, love, and freshness in our surroundings. इसके साथ हमेशा प्रोफेसर एमएन हुड्डा डायरेक्टर बीवीआई कैंप हमेशा सर मैसेज कन्वे करते हैं कि इसकी जो खुशबू है उसे हम अपने लाइफ में इम्बाइब करना चाहिए, इसकी जो फ्रेशनेस है उसे हम अपने लाइफ में इम्बाइब करना चाहिए और उसी को कैरी करके हमें लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो द सेम मैसेज फ्रॉम माय साइड फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। चलो, फूलों की इस ताजगी और खुशबू हमारे विचारों के साथ भी जुड़ी रहे, विचारों में भी वही ताजापन और वो सुरभि, उसकी सुगंध दिग दिगंतर में इसी तरह से प्रसारित होता रहे। ये हमारी छोटी सी यात्रा जो हमने 20 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ की थी, 5 वर्षों से अधिक का समय और 500 से अधिक एक्सपर्ट्स हमारे इस मंच पर आमंत्रित हैं, अब तक आ चुके हैं। आप सभी से निवेदन, ये सारे डेलिब्रेशंस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ये हमारे पास सुरक्षित संरक्षित है। आप हमारी वेबसाइट communicationtoday.net पर जाकर के इन सारे और कम्युनिकेशन टुडे के पुराने अंक हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं अपनी इच्छा से, जब आपके पास समय हो देख पढ़ सुन सकते हैं। आज का जैसा विषय है टीवी @100, टेलीविजन इन द एज ऑफ स्ट्रीमिंग एंड स्मार्टफोन्स। जिस दौर में हम आ गए हैं, स्ट्रीमिंग और स्मार्टफोन के युग में, कृत्रिम बौद्धिकता एआई के दौर में, 100 वर्ष का समय किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए एक बहुत लंबी अवधि होती है। संयोग से सिनेमा के भी हमने 100 साल पूरे कर लिए, रेडियो भी 100 साल से ऊपर का हो गया, टेलीविजन भारत में भले 100 साल का न हुआ हो, लेकिन दुनिया के संदर्भ में बात करें, वैश्विक रूप में बात करें, तो ये 100वां वर्ष है। तो एक शतक की यात्रा हमने इधर भी पूरी कर ली है। और प्रिंट मीडिया तो डबल सेंचुरी, हिंदी पत्रकारिता की बात में करूं तो हम मई के महीने में 200 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। तो ये जो पूरी की पूरी यात्रा है, हम कोशिश करेंगे अलग अलग संदर्भों पे कहीं इस पर चिंतन मनन करें कि किस तरह के बदलाव आए हैं और किस तरह से हमारे समाज और संस्कृति को प्रभावित कर रहे हैं। वर्ष 1926 जॉन बेयर्ड ने पहली बार सार्वजनिक रूप से टेलीविजन का सफल प्रदर्शन किया था, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं वो किया था। यह प्रदर्शन लंदन में किया गया था और इसमें चलती हुई छवियां, जो मूविंग इमेजेस हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदर्शित किया गया था। जब 1903 में पहली बार, 1903 नहीं, ये मेरे ख्याल 1893-94 के आसपास की बात है, जब ल्यूमियर ब्रदर्स ने पहली बार एक फिल्म के माध्यम से चलती फिरती आकृतियां प्रदर्शित की थी, अपने आप में वो एक अनहोनी घटना थी। और आप कल्पना कर सकते हैं उस दौर में जब ये चलती फिरती आकृतियां व्यक्तियों ने देखी होंगी तो किस तरह का उनको एक रोमांच हुआ होगा। तो जब पहली बार टेलीविजन का ये जो प्रयोग है, ये एक प्रकार से व्यावहारिक तकनीक के रूप में हमारे सामने आता है। टेलीविजन युग की वास्तविक शुरुआत, बर्थ ऑफ टेलीविजन, हम 1926 से मान सकते हैं। हालांकि इसके जो एक्सपेरिमेंट हैं वो 1920 के आसपास शुरू हो चुके थे। तो 1926 को यदि हम औपचारिक आरंभ बिंदु माने तो आज हम इसके 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि 1920 के दशक में प्रयोगात्मक प्रसारण शुरू हो चुके थे। जॉन बेयर्ड जैसे वैज्ञानिकों ने पहली बार चलती तस्वीरों को स्क्रीन पर लाने का प्रयास किया।
1930 से 40 के दशक में रेगुलर ट्रांसमिशन शुरू हो चुका था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद टेलीविजन घर घर में पहुंचने लगा था। 50 से 70 का दशक एक तरह से गोल्डन एज माना जा सकता है टेलीविजन का, जिसने मनोरंजन और सूचना की दुनिया में एक नई क्रांति पैदा की। कलर ट्रांसमिशन से लेकर के सैटेलाइट तकनीक और केबल नेटवर्क के विकास ने इसकी पहुंच और प्रभाव को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। भारत में 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत हुई, जिसने 80-90 के दशक में हमारी सामाजिक सांस्कृतिक चेतना को एक नई दिशा दी। आज एक सदी की इस यात्रा में टेलीविजन ने तकनीकी नवाचारों के साथ साथ खुद को निरंतर एक तरह से रूपांतरित किया है, अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है। टेलीविजन ने अपने 100 वर्षों की यात्रा में जिस प्रकार समाज, संस्कृति, राजनीति और मनोरंजन को प्रभावित किया है, वो अपने आप में एक अद्भुत यात्रा है। एक समय था जब टेलीविजन को ईडियट बॉक्स कहा जाता था, आज कोई नहीं कहता है, लेकिन आज वही माध्यम स्मार्ट, इंटरैक्टिव और मल्टी प्लेटफॉर्म के अनुभव का एक मनोहारी केंद्र बन चुका है। टीवी @100 के अवसर पर यह समझना आवश्यक है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और स्मार्टफोन के युग में टेलीविजन की भूमिका, स्वरूप और भविष्य अब क्या होने जा रहा है। 20वीं सदी से आरंभ हुआ टेलीविजन। भारत में इसका वास्तविक विस्तार 1980 के दशक में होता है, जब दूरदर्शन एकमात्र प्रसारण माध्यम हमारे यहाँ था। उस समय रामायण, महाभारत, हम लोग बुनियाद जैसे धारावाहिकों ने केवल मनोरंजन नहीं किया, बल्कि सामाजिक चेतना को भी जागृत किया। टेलीविजन परिवारों को एक साथ बैठकर देखने का माध्यम था, एक साझा अनुभव था। गांवों की चौपाल से उसकी तुलना की जाती थी। इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के आगमन ने टेलीविजन की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। आज दर्शक केवल टीवी सेट तक सीमित नहीं है, बल्कि स्मार्टफोन और टैबलेट और लैपटॉप में भी उसे देख सकने में वो सक्षम है। ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म ने नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार आदि ने दर्शकों को ऑन डिमांड कंटेंट का एक विकल्प दे दिया है। अब दर्शक तय करता है क्या देखेगा, कब देखेगा, कैसे देखेगा। यह व्यूअर कंट्रोल पारंपरिक टेलीविजन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने कंटेंट की गुणवत्ता और विविधता को नए रूप में हमारे सामने प्रदर्शित किया है। अब सीमित एपिसोड, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री और क्षेत्रीय भाषाओं के कंटेंट में भारी वृद्धि हुई है। सेंसरशिप के अपेक्षाकृत कम नियंत्रण के कारण विषयों में वैविध्य आया है। समाज के संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर चर्चा होने लगी है। इसके विपरीत टेलीविजन अभी भी टीआरपी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स के दबाव में काम करता है, जिसके कारण कई बार कंटेंट में रिपीटेशन होता है और वो सतही भी प्रतीत होता है। आज का स्मार्टफोन पॉकेट टीवी बन चुका है। युवा पीढ़ी के लिए टेलीविजन का अर्थ अब स्क्रीन का आकार नहीं, बल्कि कंटेंट का अनुभव है। वो छोटे छोटे वीडियोस, रील्स, यूट्यूब क्लिप्स और वेब सीरीज को प्रायोरिटी देने लग गए हैं। इसमें एक निर्धारित समय पर जो कार्यक्रम हम देखते थे पहले कि 9 बजते ही फलाना कार्यक्रम आएगा, न्यूज आएगी, रामायण प्रसारित होगा, महाभारत आएगा, बुनियाद और बहुत सारे सीरियल्स जो उस दौर में चलते थे, है ना, या केबीसी और बहुत सारे इस तरह के जो थे। अब वो जो निर्धारित समय पर देखने की आदत थी, वो धीरे धीरे कमजोर हो गई। आप अपनी सुविधा से जब चाहें जब देख सकते हैं। तो पारंपरिक टीवी के सामने चुनौतियां थी। दर्शकों का फ्रेगमेंटेशन, जो उसका एड रेवेन्यू है, उसमें गिरावट हुई। युवा दर्शकों से उसकी दूरी बढ़ने लगी और कंटेंट को लेकर के विशेषकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से क्वालिटी कंटेंट आने लगा है, या मैं यूं कहूं कि इंटरनेशनल लेवल का जो कंटेंट आने लगा है, उसने उसके अभिरुचियों को, विशेषकर युवाओं की अभिरुचियों को पूरी तरह से बदल दिया है। अब लाइव इवेंट्स की ताकत, अभी आपने देखे होंगे जो वर्ल्ड कप के जो मैचेस हुए थे, उस पर लिखा हुआ आता है 30, 35, 40, 50, 60 करोड़ दर्शक देख रहे हैं। अद्भुत, मतलब अकल्पनीय कि करोड़ों दर्शक मैच को देख रहे हैं। इस तरह से जो ये परिवर्तन आया है, ये अपने आप में अद्भुत है। फिर विश्वसनीयता, हालांकि ये बहस का विषय हो सकता है कि ये कितने विश्वसनीय है या अविश्वसनीय है, लेकिन फिर भी एक सीमा तक टेलीविजन ने अपनी एक विश्वसनीय, क्रेडिबल मीडिया के रूप में पहचान बनाई है। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में भारत के संदर्भ में बात करें तो अभी भी टेलीविजन एक तरह से सूचना मनोरंजन का मुख्य माध्यम है, और कई टीवी चैनल्स अपने कंटेंट को अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध करा रहे हैं। एक तरह से हम कन्वर्जेंस के दौर में आ गए हैं।
ये मीडिया कन्वर्जेंस का दौर है, जहां टीवी, इंटरनेट, मोबाइल एक दूसरे से जुड़ गए हैं। स्मार्ट टीवी, हाइब्रिड सेट टॉप बॉक्स और ऐप आधारित चैनल्स इस बदलाव के उदाहरण हैं। आज टीवी केवल एक डिवाइस नहीं है, बल्कि एक इकोसिस्टम बन गया है, जहां लाइव टीवी, ओटीटी, यूट्यूब और सोशल मीडिया सारे प्लेटफॉर्म आपके लिए उपलब्ध हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टीवी के स्वरूप को बदलना शुरू कर दिया है। अब टेलीविजन ने समाज में संवाद और विचार विमर्श की परंपरा को बढ़ावा दिया है। ओटीटी डिजिटल प्लेटफॉर्म ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक नया रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जहां कंटेंट रेगुलेशन और एथिकल कंसर्न्स भी हमारे सामने आए हैं। आने वाले दौर में एक नया दौर शायद हम देखेंगे आने वाले समय में, जब दर्शक अपनी इच्छा के अनुसार टीवी प्रोग्राम्स को निर्धारित करने की ओर बढ़ेगा। दर्शक की जो भागीदारी है कंटेंट में, इंटरेक्टिव कंटेंट में, वो मुझे लगता है और बढ़ेगी। लोकलाइजेशन, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, स्थानीय भाषाएं हैं, उसमें कंटेंट बढ़ेगा। डेटा ड्रिवन प्रोग्रामिंग जो है उसकी शुरुआत होगी। अरे बेटा, एथिक्स और रेगुलेशन, मीडिया के लिए एक नया दौर आएगा। टैलेंट 100 केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि मीडिया की विकास की एक महत्वपूर्ण यात्रा का प्रतीक है। टेलीविजन ने समय के अनुसार खुद को बदला है और भविष्य में भी बदलेगा। आज टेलीविजन स्मार्ट हो चुका है, केवल स्क्रीन नहीं बल्कि एक अनुभव है, जो दर्शकों के हाथों में उसकी पसंद के अनुसार हर समय उपलब्ध है। स्ट्रीमिंग और स्मार्टफोन के इस युग में टेलीविजन का भविष्य समाप्त नहीं, बल्कि उसका री इन्वेंशन हो रहा है, एक तरह से उसका पुनर्जन्म हो रहा है। यह इस बात का संकेत है कि एक ऐसा माध्यम है जो परंपरा और तकनीक के बीच एक पुल का काम कर रहा है। इसलिए टेलीविजन समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि कई लोग घोषणा करने लगे हैं, जैसे प्रिंट मीडिया की मौत का ऐलान किया जा रहा है, वैसे ही टेलीविजन के अंत की बात भी की जा रही है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि यह पहले से भी अधिक प्रभावी माध्यम के रूप में हमारे सामने उभरेगा। आइए बात करते हैं। हमारे पास दो विशेषज्ञ आज हैं इस विषय पर बात करने के लिए। डॉक्टर ओम प्रकाश, जिनका सीधा जुड़ाव करीब करीब 35 साल तक टेलीविजन की दुनिया के साथ रहा, दूरदर्शन में आपने काम किया, और मृणाल चटर्जी, जो प्रिंट मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ उनका जुड़ाव रहा है, कई प्रोग्राम्स आपने किए और अध्यापन के साथ जुड़े रहे। विस्तृत परिचय जब मैं आमंत्रित करूंगा आपको बात करने के लिए उस समय दूंगा। लेकिन शुरुआत करेंगे भाई डॉक्टर ओम प्रकाश से। डॉक्टर ओम प्रकाश डीडी राजस्थान जयपुर में निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए। इनके व्यक्तित्व के बहुत सारे पक्ष हैं, क्योंकि लगभग 2-2.5 दशक का मेरा इनके साथ संवाद, इनके साथ मित्रता, बहुत सारे प्रोग्राम डीडी राजस्थान या जयपुर दूरदर्शन में मुझे इनके साथ करने का मौका मिला, तो बहुत निकटता से मैंने इनको देखा। लगभग 1-1.5 दशक तक इन्होंने मेरे विभाग में गेस्ट फैकल्टी के रूप में टेलीविजन की कक्षाओं को पढ़ाया, विद्यार्थियों को तैयार किया। आज बहुत सारे विद्यार्थी टीवी चैनल्स में काम कर रहे हैं। FTII फिल्म टीवी इंस्टीट्यूट में 2 बार बाकायदा आपने ट्रेनिंग ली है, और जो नवीनतम तकनीक उस दौर में उपलब्ध थी उसको आपने देखा, समझा, परखा है। टेलीविजन दूरदर्शन केंद्र के डायरेक्टर के रूप में भी आपने नए प्रयोग उस दौर में किए थे, चाहे वो धारावाहिकों के रूप में हो, चाहे नए कार्यक्रमों की प्रस्तुति के रूप में हो। लेकिन ओम प्रकाश जी एक प्रोड्यूसर के साथ साथ, एक ब्रॉडकास्टर के साथ साथ, उनके व्यक्तित्व में जो एक महत्वपूर्ण पक्ष है, वो जो संवेदना का पक्ष है, वो है एक लोक कला का। लोक कलाओं के साथ जो आपका जुड़ाव है वो आपको विरासत में मिला है। एक प्रकार से एक लोक कलाकार के रूप में आपने विशिष्ट छवि अपनी निर्धारित की है। पपेट थिएटर में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आकाशवाणी के साथ भी आपका जुड़ाव रहा, वहां के संगीत के कार्यक्रमों में आपका जुड़ाव रहा, लोक शैली में आपने बहुत सारे अपने गीत भी प्रस्तुत किए। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रेडिशनल मीडिया के साथ साथ जो ये पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, आकाशवाणी, दूरदर्शन, इनके साथ भी आपका सक्रिय गहरा जुड़ाव रहा। MA सोशियोलॉजी में किया, BJ जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन की डिग्री ली, LLM की उपाधि प्राप्त की। देखिए, पढ़ने में भी बहुत रुचि रही है आपकी। और उसके बाद PhD किया आपने लॉ फैकल्टी में, और उसका विषय था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसको लेकर के आपने अपना PhD की भी उपाधि प्राप्त की। और जब तक मैं विश्वविद्यालय में सेवा काल में था, तो हमारे यहाँ के बहुत सारे जो अकादमिक आयोजन थे, सेमिनार, संगोष्ठियाँ, उसमें भी आपकी बराबर सहभागिता रही। और जो टीचर्स के हमने रिफ्रेशर कोर्स किए थे, मैंने करीब 5 रिफ्रेशर कोर्स किए अपने कार्यकाल में, उनमें भी आपकी बराबर सहभागिता रही। और जो नए शिक्षक उसमें आ रहे थे, उन्हें आपने दूरदर्शन
और टेलीविजन से जुड़े हुए जो नवीनतम उसकी पक्ष हैं उनके बारे में भी उनका जो ओरिएंटेशन है वो किया था। मैं भाई डॉक्टर ओम प्रकाश से अनुरोध करूंगा, जैसा मैंने आपसे कहा कि उनके व्यक्तित्व के कई पक्ष हैं, तो अपनी शुरुआत एक लोकगीत के माध्यम से, ताकि थोड़ा सा एक रस परिवर्तन भी हो, एक गीत के माध्यम से करें। फिर टेलीविजन की दुनिया के बारे में आप क्या सोचते हैं संक्षेप में, फिर उसकी भी कुछ चर्चा करें। उसके बाद भाई प्रोफेसर मृणाल चटर्जी अपनी बात रखेंगे। ओम प्रकाश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बात को, आपके आदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश करने में सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जहाँ शुरू हुए थे, ग्राहक को ही राजा मान के जिस यात्रा की हम लोगों ने शुरुआत की थी, चाहे वो अखबार की दुनिया हो, चाहे रेडियो की दुनिया हो, चाहे वो टेलीविजन की दुनिया हो, लेकिन वहां से आगे हम बढ़े तो हमने अब तक जो तय किया है या जो समझा है या लोगों को समझाया है, वो है कि कंटेंट इज द किंग। हमने सामग्री क्या परोसी है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। मैं इसको यूं कहूंगा कि युग देख के जीना। समय कैसा चल रहा है और समय के मुताबिक अगर संचार में, आपसी व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो तो संभवतया बात करने वाला कोई भी हो, उसको आउटडेटेड मान लिया जाएगा। इसलिए मैं ये मानता हूं कि युग देख के जीना संचार की प्रथम आवश्यकता या प्रकृति है। युग देखकर जिएगा वो व्यक्ति अपने आप को समाज में अपने तरीके से आगे बढ़ा सकता है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि बात दूरदर्शन की है तो मैं इन टोटलिटी कम्युनिकेशन पे, जैसा आप भानाल साहब ने कहा, मैं अपना एक गीत जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और वो है संचार पे। हमारा होता रहे संचार, हमारा होता रहे संचार। मैं समझूं, कुछ मैं समझूं, कुछ तुम समझो, समझेगा संसार, हमारा होता रहे संचार। प्राणी का है अर्थ संचरण, प्राणों का है सार। प्राणी का है अर्थ संचरण, प्राणों का है सार। आवागमन के माया जाल में जुड़ता एक एक तार, हमारा होता रहे संचार, हमारा होता रहे संचार। भाषा दृश्य, भाषा दृश्य प्रतीक इशारा, भाषा दृश्य प्रतीक इशारा। संचारक के बाण, संचारक के बाण माध्यम की प्रत्यंचा चढ़कर, माध्यम की प्रत्यंचा चढ़कर उतरे दिल में पार, हमारा होता रहे संचार, हमारा
होता रहे संचार, कुछ मैं समझूं कुछ तुम समझो, समझेगा संसार हमारा, होता रहे संचार। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए टेलीविजन के जो 100 साल की बात हो रही है, उसको मैं यूं कहूंगा कि हमारे यहाँ लोक जीवन में एक जुमला चलता है, एक कहावत चलती है, और कोई भी आदमी किसी के बारे में जब बोलता है कि उसको 100 साल हो गए, तो इसका मतलब कुछ और माना जाता है। यानी जो चीज आउटडेटेड हो गई, जो चीज अपने अस्तित्व विहीन हो गई, या जो व्यक्ति संसार से चला गया, उसको कहावत में कहा जाता है फलां को 100 साल हो गए। तो इस हिसाब से देखें तो जिस टेलीविजन के बारे में हम बात करने के लिए बैठे हैं, तो ये स्थिति और ज्यादा हमें गंभीरता से बात करने की या गंभीरता से सोचने की आवश्यकता, ये जरूरत बताएगी। लेकिन हाँ, जो साइंस जो है, विज्ञान जो है, कम्युनिकेशन जो है, मानवीय स्वभाव जो है, हमारी विज्ञान जो है, उसने जिस तरह से बातों को, समय को, संचार के तरीकों को एक उड़ान दी है, एक ऊंचाई दी है, उसके आधार पर हमें इस तरह की बात सोचने की बजाय हमें ये सोचना है कि अगर सोलह में यह यात्रा हुई है, तो आगे आने वाले 100 साल में और क्या होगा। आज हम जीपीएस के माध्यम से पूरे हम दुनिया के किसी भी कोने की खबर जो है उसको देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। और आज तो जैसे भानाव साहब ने बताया कि ये जो टेलीविजन है वो हमारी मुट्ठी में आ गया है। आज किसी आदमी को टेलीविजन डिवाइस लेके घूमने की जरूरत नहीं है। अगर उसके पास, उसके हाथ में या उसके जेब में मोबाइल है, तो वो निकाल के और कहीं की भी कोई भी चीज कभी भी देख सकता है। तो आज वैज्ञानिकों के लिए भी, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी ये एक नई चुनौती है कि आज के जीवन में, आज के समाज में, आज के देशों में, आज के विदेशों में लोगों को क्या चाहिए, और उस चीज को हम किस तरह से उसको उपलब्ध करा सकते हैं। अगर इस कंटेंट पे हम लोग जो अपने आप को सोशल ब्रॉडकास्टर या कम्युनिकेटर कहने की स्थिति में मानते हैं, तो ये जिम्मेदारी हम लोगों पे ज्यादा बड़ी है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो मुझे लगता है कि ना केवल कंटेंट क्रिएटर, जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ती जा रही है, जब टेलीविजन बना था और आज 100 साल में उसने जो स्वरूप अख्तियार कर लिया है, उस स्वरूप के आधार पर आगे और क्या संभावनाएं बनती हैं। आज बहुत जोर शोर से एक बात होती है कि साहब ये जो क्वांटम फिजिक्स है, इसके तहत जो क्वांटम एंटेंगलमेंट का जो एक सिद्धांत लोगों के सामने आ रहा है, लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पुरानी कहानियों में, दादी नानी की कहानियों में हम जो चमत्कार और मिसमराइजेशन का जो लोक कहावतों में जो स्वरूप सुनते थे,
या समझने की कोशिश करते थे, वो आज हमें वास्तव में देखने को मिल रहा है। विज्ञान इसको स्वीकार कर चुकी है और मीडिया की भाषा में कहूँ तो हमारे पास 2 उदाहरण तो मेरी जानकारी में हैं। एक तो मिस्टर इंडिया में जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया और दूसरी जो फ़िल्म थी जुड़वाँ। जुड़वाँ में जो जिस सिद्धांत को दिखाया गया, वो दोनों मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, वो आम जनता को क्वांटम फिजिक्स को समझाने का एक माध्यम रहा है और उस संबंध में, उस बारे में लोगों की समझ पनपी भी है, विकसित भी हो रही है। विज्ञान भी लगातार आगे बढ़ रहा है, उसके प्रयोग करने की सोच रहा है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जब पूरी दुनिया में धरती को छोड़कर आकाशीय दूसरे ग्रहों में मानव सभ्यता पनपने की, बसने की तैयारी कर रही है, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि वहां बैठे लोग आपस में धरतीवासियों से बात करेंगे, धरतीवासियों को आपस में एक दूसरे की स्थितियां परिस्थितियां बताएंगे, मौसम की जानकारियां देंगे। और आज जो हम पूरी दुनिया की जानकारी अपने मुट्ठी में रखने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है हम पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाएं। और हमारे यहाँ जो आध्यात्म है, उसने तो पहले ही इस बात को जोड़ लिया कि पिंड में ब्रह्मांड है। अब ये हमारी मर्जी है कि हम कौन सी बात को कितना समझना चाहते हैं, कौन सी बात को लोगों के साथ मिलकर कितना बांटना चाहते हैं और कौन से तरीके से हम अपने मानवीय कम्युनिकेशन को लोक हितैषी बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। भानावत साहब। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत आभार भाई ओम प्रकाश जी। संचार होता रहे संचार, वस्तुतः मुझे लगता है आज के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और उस दौर में जब आपने कहा कंटेंट इज किंग, वही दूसरी बहस है डेटा इज किंग। ये बहस शुरू हो रही है क्योंकि जिस तरह से डेटा का खेल हो रहा है, उसने एक नई बहस को शुरू किया। लेकिन अंततः बेहतरीन और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट ही इन माध्यमों को जीवंत और जीवित बनाए रखेगा। तकनीक भले ही कितनी आगे पहुंच जाए, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो आपने गीत के माध्यम से व्यक्त किया कि कुछ हम समझें कुछ आप समझें, तो ये समझने समझाने की परंपरा इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। और 100 वर्ष पूरे होने का जो प्रतीकात्मक अर्थ आपने बताया, उससे हट करके ये माध्यम अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो। भले ही इस तरह की घोषणाएं, जैसा मैंने भी कहा था कि टीवी के अंत की बात की जा रही है, ये जब जब नई तकनीक आती है तब तक ये सारी चुनौतियां आती हैं, लेकिन ये माध्यम जीवंत और सूचना मनोरंजन के प्रभावी माध्यम के रूप में आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, अब हम चलते हैं भाई प्रोफेसर मृणाल चटर्जी के पास। वो क्या सोचते हैं, लंबा अनुभव मीडिया शिक्षण का, मीडिया का, लंबे समय तक दैनिक पत्र समाज के संपादक के रूप में उड़ीसा में आपने काम किया। पत्रकार के साथ साथ एक साहित्यकार, कहानीकार के रूप में भी आपकी विशिष्ट पहचान रही है। बहुत सी लघु कथाएं आपने लिखी हैं, कई उपन्यास आपने लिखे हैं, और मूलतः उड़िया और बंगाली भाषा में आप लिखते हैं, अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं। लेकिन आपका ये सृजनात्मक लेखन जो है वो कई भाषाओं में अनुदित भी हुआ है। ये आपके साहित्य की विशेषता रही है कि उसे कई भाषाओं में अनुदित किया गया है, तो एक प्रकार से राष्ट्रीय व्यापक पहचान उनके लेखन को मिली है। मीडिया में जिस तरह से बदलाव हुआ है ग्लोबल रूप में, उसको लेकर के आपने अपनी डिलिट की उपाधि भी प्राप्त की है। मीडिया एजुकेशन में बहुत कम ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अकादमिक क्षेत्र की जो सर्वोत्तम सबसे बड़ी डिग्री है पीएचडी के बाद भी डिलिट, वो करने वाले बहुत कम टीचर्स हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो उनमें प्रोफेसर मृणाल चटर्जी हैं। अभी आपने कुछ ही वर्ष पहले बरहामपुर से अपनी डिलिट की उपाधि पूरी की है।
और लगभग 2 दशक तक आपने भारतीय जनसंचार संस्थान उड़ीसा का ढेंकानेल जो सेंटर है वहाँ पर आपने अध्यापन कार्य किया। क्षेत्रीय निदेशक के रूप में उस इंस्टीट्यूट को आपने एक विशेष पहचान दी है। प्रोफेसर मृणाल चटर्जी का भी मेरे साथ बहुत एक आत्मीय सहयोग रहा है, और न सिर्फ विभागीय और अकादमिक आयोजनों में, हमारे यूनिसेफ की जो वर्कशॉप्स हैं उनमें भी आपका जुड़ाव रहा, और जो विभागीय कार्यक्रम रहे उसमें भी आपकी उपस्थिति कई बार बनी रही। मुझे भी आपका ढेंकानाल जाने का 2-3 बार मौका मिला। लेकिन मृणाल चटर्जी का ये जो हमारी वेबिनार श्रृंखला है और कम्युनिकेशन टुडे है, उसमें मुझे विशेष रूप से सहयोग मिलता रहा। जहां कम्युनिकेशन टुडे में आप नियमित रूप से लिखते रहे हैं, वहीं इस वेबिनार सीरीज में नए नए विषयों पर, समसामयिक विषयों पर इस तरह के आयोजनों को करने के लिए आपकी प्रेरणा मिलती रही है। बल्कि ये जो आज का हमारा ये जो सीरीज है, एपिसोड है, इसकी परिकल्पना भी मृणाल जी की थी। कुछ समय पहले, कुछ सप्ताह पहले आपका फोन आया था कि 1926 हम 2026 में आ गए हैं, तो क्यों नहीं इस पे भी एक वेबिनार किया जाए। इसके पहले भी हमने कुछ फिल्मकार को लेकर के और शैलेंद्र को लेकर के, ऋत्विक घटक को लेकर, हरिशंकर परसाई आदि इस तरह के बहुत सारे जो हमारे साहित्यकार, फिल्मकार थे, इनको लेकर जो आयोजन किए उसमें भी आपने मुझे काफ़ी सहयोग किया है। मैं अनुरोध करूंगा भाई मृणाल जी से कि इस टेलीविज़न की बदलती दुनिया में, क्योंकि आपने टाइम्स ऑफ इंडिया फेलोशिप पे काम किया, आपने जो वहाँ के उड़िया टीवी हैं उसमें आप लंबे समय तक जुड़े रहे, आपने वहाँ पर साइंस के शोज़ किए, आपने वहाँ डिस्कशंस कंडक्ट किए, तो टीवी मीडिया के साथ भी आपका बहुत गहरा जुड़ाव रहा है। तो इस जो एक समग्र दृष्टि एक मीडिया कर्मी के रूप में इन माध्यमों को देखने की जो आपकी रही है, मैं अनुरोध करूंगा भाई मृणाल जी से कि इस अवसर पर अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। भाई मृणाल चटर्जी। धन्यवाद। 2026 happens to be a very interesting year. 150 years ago, telephone started. Exactly 150 years ago, 1876, Graham Bell. 50 years after telephone, television started. In fact, the preparation for a device like television started even earlier, but it was on 26th January 1926, Scottish inventor John Logie Baird, he publicly demonstrated the first mechanical television system in London. Now, isse 30 saal pehle, on 1895, December 28th to be exact, film first commercial film screening चालू हुआ था। सो ये जो प्रोग्रेस आप जरा नोट करें, 150 years telephone, then 1895 screening of films, and after 1895 it was on 1926 that television started, and exactly 10 years after that, that precisely means 1936 November 2nd, BBC launched the world's first regular high-definition television service. The news जो हम देखते हैं टेलीविजन में, जिस तरह से देखते हैं, उसकी जो पहली ढांचा, वो हम 1936, 90 साल हो गया, 90 साल के पहले हमने देखा। 15-20 minutes, what I'll focus on is on social dynamics of television in a digital era. तब मैकेनिकल था, लंबे समय तक टेलीविजन एनालॉग मोड में ही था। पहले तो मैकेनिकल मोड में था, फिर एनालॉग मोड में आया, एंड देन sometime in 90s in India it graduated to the digital mode. और इस दौरान टेलीविजन लोगों की संस्कृति पे, लोग किस तरह से न्यूज और एंटरटेनमेंट के साथ जुड़ेंगे, इस पे एक गहरा प्रभाव छोड़ा। Like all communication technologies, television also had a deep
impact on culture, on social interaction, on how people engage with their leisure time. I mean, all these things were impacted. It also triggered kind of fashion, kind of language, including slangs. All these happened due to television. Now, in the digital era, the social dynamics of television, they are undergoing a significant transformation. ये इसलिए हो रहा है कि टेलीविजन के साथ, थैंक्स टू द डिजिटल टेक्नोलॉजी, और कुछ डिवाइसेस का एक कन्वर्जेंस ऑलरेडी हो चुका है. हम मोबाइल पे भी टेलीविजन देख सकते हैं, हम हैंडहेल्ड डिवाइसेस, आईपैड एटसेट्रा पे देख सकते हैं, लैपटॉप पे भी देख सकते हैं. सो पहले जो टेलीविजन की एक फैमिली व्यूइंग के एक डिवाइस था, वहां टेलीविजन बहुत कम है. Research says either there are multiple number of television sets in households, in middle class and upper middle class households, or there are devices in which people like to watch their own पसंदीदा शो. So ऐसा भी हो सकता है कि एक घर में कोई टेलीविजन देख रहा है, कोई मोबाइल पे देख रहा है, कोई लैपटॉप पे और कुछ देख रहा है, और साइमल्टेनियसली 2-3 डिवाइसेस में भी देख रहे हैं. ये जो स्थिति है, ये एक अद्भुत टाइप की इम्पैक्ट व्यूइंग पैटर्न पे, कल्चर पे ला रहा है. Now, since it's let me concentrate on India mostly, because we are slightly late in entering television era. In Asia, if we look at China, started earlier than us, Japan started earlier than us, but in Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, they started after us. So it was in 50s, not the very many years before that, it was in 50s that television came to Asia. Doordarshan played a very important role in our social interaction. It started as an educational devices and development device. कृषि पे, पढ़ाई पे, इस पे ज्यादा फोकस दूरदर्शन के था. 80s 90s में उसका परिवर्तन की दौर शुरू हुआ, and gradually television became kind of one device which provided education, which provided entertainment, which also provided a lot of information, new information. ये तीनों देने लग गए. Late 80s is the golden era of Indian television. 90s से हम cable television and satellite television के दौर पे चले गए. India has had a good experiment called Sight in 70s, in mid 70s, 76 onwards for 2-3 years, which brought in the satellite television into India. And so regional language channels in India exploded after the 1990s. ये जो regional language channels, हालांकि इसकी शुरुआत पहले से ही हो चुका था, but it came as a flood sometime in 1990s, in both in government sector as well as in private sector. And this brought about a sea change in the viewing pattern. लोग अपने भाषा में अपने कल्चर को देखने लगे, और टेलीविजन एक फैमिली व्यूइंग की सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म के रूप में उभर आया. So much so that films also thought they are threatened. 95 onwards, we had this digital era dawning in India,
to be exact, August 15, 1995, internet services were launched, mobile telephony was launched, and with the digital program, the Digital India program launched on July 1st, 2015, तो डिजिटल एरा में हम पूरी तरह से प्रवेश कर लिया. And what happened to television? Gradually, family disintegrate होने लगा when it comes to interaction with television. सबके घरों में काफी झगड़े भी हुए होंगे. मेरे एज में जो है 40s 50s में जो है काफी झगड़े भी हैं. बच्चे बोलेंगे हम स्पोर्ट्स देखेंगे, बुजुर्ग जो है वो बोलेंगे हम रामायण महाभारत देखेंगे, बीच के जो हैं वो बोलेंगे हम फैमिली सीरियल, सास बहू सीरियल देखेंगे. तो उसमें काफी झगड़ा हुआ. और डिजिटल सॉल्यूशन was gradually came with more and more devices in which one can see what they call in their private space. So इससे एक वर्ड आ गया कि धीरे धीरे हम व्यूइंग प्राइवेट स्पेस में करने लगे. That also impacted family interaction. जो फैमिली व्यूइंग के टाइम पे फैमिली के जो बातचीत होता था, फैमिली के आपस में जो बातचीत होता था, जो जिस टाइम की होता था, दैट क्वालिटी फैमिली टाइम got reduced. Became kind of individual space में जाके ज्यादा समय बिताने लगे, अपना अपना पसंद की चीजें देखने लगे. No, now viewing in different platforms, including television, becomes the one of the great driver of social discourse and trend generation. Visual media, including television and including other medium as well. So, for example, social media. सोशल मीडिया आया इंडिया में 20-30 साल ही होंगे. पहले ऑर्कुट आया, फिर बाद में बाकी चीज आने लगी. 20 years, 20-25 years ऑर्कुट पहले आया था, फिर और उन्हें आ गया. But now we have about 5.24 billion users. Most of them are Gen Z and Gen Alpha. They watch television less. They have what they call together alone syndrome. They are with the family, but when it comes to viewing something, they prefer viewing it in their own private space. टेलीविजन में क्रिकेट होता रहेगा, अगर आप साथ में भी बैठो, बट वो अपना जो मैच की व्यूइंग वो अपने डिवाइस में देखता है. In many houses, you will find this happening gradually more and this is one concern for the sociologists also. Social interaction की जो density था वो शायद धीरे धीरे कम हो रहा है. And this created this uber personalization of viewing created filter bubbles, reinforcing existing beliefs, creating ideological echo chambers, which is happening more and more. Right? We are kind of repelling other thoughts, other kind of music, other kind of entertainment, other kind of news also. So gradually, जो एक heterogeneity in different aspects, television as a group लेके आया था. डिजिटल एरा में जो सेग्रीगेशन हो गया है उसके वजह से वो धीरे धीरे होमोजेनिटी में तब्दील हो रहा है, which is dangerous. Because if you watch only what you think you want to watch, then you remain in an echo chamber.
You do not allow other thoughts. You do not allow other kind of entertainment. You do not allow anything else than what you think you want. इसमें algorithm का खेल भी आ गया है. So therefore, if we look at impact of viewing on social family dynamics, it has impacted a lot. It has altered family viewing habits, with many opting, as I told you just now, individual screens over shared television time. So what happens now, cutting a long story short, while the main television remains a central feature, every from lower middle class to middle class to upper middle class, rich class, television will be a central feature. वो रहेगा ही रहेगा. आपके ड्राइंग रूम में एक टेलीविजन रहेगा ही रहेगा, अदर उसमें भी रह सकता है. लेकिन it has largely superseded by personal devices. That is the situation now. And these personal devices allow tailored on-demand view. ये और एक है. पहले टेलीविजन अपना टाइम होता था, हम अपना टाइम उससे एडजस्ट करते थे. रामायण इसी टाइम पे आएगा. We shall have to adjust our time in order to view Ramayana at a particular time. Those days are gone. Even on television, those days are gone. ये OTT platform आपको on demand दे रहा है. So what is the impact on social dynamics? Social dynamic पे इसका impact है, जो जेन जी जेन अल्फा है वो सोच रहे हैं कि हम जो चाहेंगे वो हमें मिल सकता है. जो हम चाहते हैं वो मिलेगा. The catch is that जो हम चाहते हैं करके कोई सोचता है वो नहीं चाहता. वो और कोई फिक्स कर रहा है कि आपके दिमाग में कि आप ये देखो भैया, आप ये चाहते हो. You do not know what you want. They will tell you you want, then you will think that I want this. That is the major problem of society when the television from family viewing became, right, a kind of device which is no longer viewed by entire family together, except probably when India plays cricket match with somebody else. for everyone. तो ये Now, जो मैं कर रही हूँ इसका influence social discourse पे क्या हुआ? Television remained, was, and still is a powerful tool for shaping public opinion and influence social discourse. आज तक वो है. लेकिन टेलीविजन की जो पकड़ सोशल डिस्कोर्स पे एंड पब्लिक ओपिनियन शेपिंग पे था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है. ये कम होने की 2-3 प्राइम वजह है. दिख रहा है क्या? एक वजह है कि वही जो हम अपना डिवाइस में देखना चाहते हैं, अपने आप को एक इको चैम्बर में डालते हैं. The second is the trust that people have had on television, especially television news, is going down. So there is a trust deficit issue for television news. And second, on the other hand, simultaneously, we are wrapping ourselves within an echo chamber. Together, these two factors is reducing the kind of impact television have had on public opinion, on shaping public discourse, social discourse. तीसरा बात भी ये है, because television viewing is going down,
gradually. They are attracting less and less advertisement. If you look at the advertisement revenue that television is attracting, it's till now it's considerable amount. If you look closely, the amount is coming down. If you look at percentage, what percentage goes to print, what percentage goes to digital, what percentage goes to in which platform, to which area, so it's coming down. So when the revenue comes down, the television channels, they are focusing more on getting TRP by any which way. And that becomes a major problem. When you try something any which way, usually you try the wrong way. You get to go, you get to there by a shortcut way. And that impacts on the trust quotient. Television is suffering that trust quotient, trust deficit now. So another point is sensationalism, biased reporting, partisan reporting, creating a kind of a situation where people shout at each other. All these are creating trust deficit for television. ये जो डिजिटल कन्वर्जेंस में ये धीरे 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 और हो रहा है. और एक चीज हो रहा है, ये थोड़ा मैं इसकी जो इम्पैक्ट बता रहा हूं वो थोड़ा में अटपटा सा लग रहा है, बट देयर आर सर्टेन गुड एरियाज वेयर आई विल कम इन अ शॉर्ट व्हाइल. और एक काम जो टेलीविजन ने किया, मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल डायमेंशंस, इसका एक पहलू है जो कि इंडिया multilingual and multicultural country like India, it has played a great role in connecting those in getting all of India together. Consider what happened during Ramayana, consider what happened during Mahabharata, considering what happened during those days when the television serials were there, like several हम लोग एक्सेट्रा. आज की तारीख में और एक चीज आ गया है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हिच इज ग्रेजुअली impacting all visual devices and platforms. AI will create algorithm probably dictated by the people who are creating those kind of platforms. ये हो सकता है और धीरे धीरे हो रहा है. इसमें अच्छी बात ये हो सकता है कि by using AI, television can actually immediately translate stories from one language to another. Real time translation कर सकता है, real time story picturization भी कर सकता है, उससे बहुत सारी advantage उनको मिल सकता है. लेकिन the flip side is it can also damage the kind of pictures, the kind of viewing that we used to have. And any technology at one point of time stands at a crossroad. There are other technologies which are probably superior, which probably bring in new things, and we think that this technology probably will die. Some technologies do, but there are some technologies which adapt and come in a position where they come updated, where they bring in things which probably
gives them extra energy, extra power to move on. Television is one such device. Television can now be connected with internet, with OTT, with smart television. We are all using now smart television. So gradually, dhire dhire, the television is reinventing its own power. And gradually, at one point of time, ये जो together alone syndrome में हम रहते रहते उब जाएंगे. Together alone is हम साथ साथ बैठे हुए हैं, लेकिन साथ में देख नहीं रहे. Together alone syndrome, right? That will irritate us at one point of time. This time is coming very fast. We will rediscover the joy of sitting together and watching, like films are doing now. They are also, the film viewing is also rediscovering itself with added devices, added things. It's becoming an experience. It's not watching a movie, it gives you a complete experience. Cinema viewing is going that way. The greatest power of television was family bonding. Probably with digital technology, with connect with the internet and AI, probably television, quite probably it will be. Television will rediscover itself as the greatest device of family viewing. And once it regains its position, it will again regain its position as one of the greatest devices of forming public opinion, of giving us information which we need, not want. अपनी चाहत और जरूरत ये दोनों अलग चीजें हैं. टेलीविजन शायद वो अंडरस्टैंड करेगा कि हमें अब चाहत की नहीं, जरूरत को कैटर करने की आवश्यकता आ पड़ी है. And once television does that, I'm sure in another 20 years, as AI moves to its next gen, television will all regain its position. Thank you very much. जी बहुत बहुत आभार भाई मृणाल जी. बदलते दौर में टेलीविजन के पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रभावों का जिस तरह से आपने अंतर्विश्लेषण किया और किस तरह से री इन्वेंट कर रहा है टेलीविजन आज के इस दौर में और आने वाले समय में कृत्रिम बौद्धिकता के आधार पर जिस तरह से ये सारा परिवर्तन होगा उसकी आपने एक परिकल्पना की. बहुत बहुत आभार आपका. और ये सत्र अब चर्चा के लिए खुला है, किसी के मन में कोई सवाल हो. लेकिन इसके पहले मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से कि आज के हमारे जो दोनों एक्सपर्ट स्पीकर हैं इनको ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो आप भेंट करें. जी सर, बिल्कुल. Once again, thank you, sir. Sir, this is just an honor of gratitude and respect the way you have presented your thoughts with all of us. So this is your e-certificate, Mrinal sir, on the screen. Thank you. Thank you so much, sir. Let me share the certificate of Om Prakash sir as well. Sir, we have your certificate on the screen. Is it visible, sir? No, still not. Okay, I guess now. Yeah. Yeah. Thank you so much, Om Prakash sir. And we are looking forward to host you once again, to both of you, as Mrinal sir is with us. ई मेमेंटो. Yes, sir, sure. It's again वापस ये सर्टिफिकेट है. जी सर, एक मिनट दीजिएगा सर. I guess now it is
Sir, e-memento is on the screen. We will be sharing this through WhatsApp or through your email ID. We have the memento of Om Prakash sir as well. Let me share that. Sir, this is your e-memento, Om Prakash sir. Thank you so much, sir. चलिए, सत्र चर्चा के लिए खुला है। कोई भी मित्र सवाल पूछना चाहें, अपना वीडियो ऑन करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो ऑन करें, अपना परिचय दें और जो भी टिप्पणी है, कोई ऑब्जर्वेशंस है, सवाल हैं, आमंत्रित है। अब मुझे लगता है कोई नहीं है शायद सवाल। Sir, हाँ, we have the comments in the chat एक box. आशीष हाँ आशीष एक बोलो। आशीष रंजन जी के टीवी के एक सामने में भविष्य twist. में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की भूमिका क्या होगी, इसका प्रभाव कैसा होगा? स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ऑलरेडी आ चुका है। ऑन टेलीविजन, स्मार्ट टेलीविजन में आप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म देख सकते हो। तो आई गेस ये तो और आएगा ग्रेजुअली जैसे ये स्मार्ट टेलीविजन की कॉस्ट थोड़ा कम होगा और ये पुराना वाला जाएगा, नया वाला आएगा, तब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म भी उसमें आएगा। लेकिन यहाँ जो होगा, दोनों चीजें होंगी। एक व्यूइंग बढ़ेगा, मतलब लोग एक साथ बैठ के, सारे फैमिली के लोग एक साथ बैठ के तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन अलग अलग भी देखेंगे, क्योंकि till now there are some OTT series which probably many Indian families would not like to sit together and watch. But they will be watching those web series in their private space. So private space में तो viewing बढ़ेगा ही बढ़ेगा, but family viewing भी बहुत सारे ऐसे web series हैं जिसमें फैमिली बैठ के आराम से देख सकते हैं, वो भी आएगा। तो आई गेस स्ट्रीमिंग भूमिका है वो सकारात्मक रहेगा। There will be more people watching together on a large screen, because ये छोटी छोटी स्क्रीन में जितना आपको आनंद मिलता है टेलीविजन की स्क्रीन में, उससे ज्यादा आनंद आपको मिलेगा। तो to enjoy those shows, probably there will be more family viewing. That's my prediction. Thank you. Okay, sir, can I intervene? Yes sir, yes Sanjay ji. Okay, yeah, it was really a very interesting session, and I think I don't have any words to say, because Mrinal Chatterjee himself is a big scholar, like told by Banawat ji. But then, of course, let me tell you over here, it's very pertinent that I have a great affinity and a great connection with the Bengali people. Why? Because my entire schooling has been in Calcutta. Right, so there is a lot of affinity, and I find this is the forum. I think I should be speaking that Bengalis are great scholars, actually. जी, thank you very much. Yes. There's no questions as such. Okay. And, yeah. लेकिन मृणाल जी, मुझे लगता है आपने जो कहा ना ग्रुप व्यूइंग बढ़ेगी, मुझे डाउट है, क्योंकि फैमिली छोटी होती जा रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, कि बच्चों पे जिस तरह का प्रेशर है वो ज़्यादातर अपनी ट्रेवलिंग में देखते हैं टीवी वगैरह, टाइम ही नहीं है उनके पास। तो ये जिस तरह से चेंज हुआ है स्ट्रीमिंग का। दूसरा जो मुझे लग रहा है, अभी मैं पढ़ रहा था कि नेटफ्लिक्स पे इस तरह के उन्होंने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं कि किसी भी फिल्म का आप एंड अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। कई बार आप फिल्म देखते हैं, आपको लगता है यार इस फिल्म का एंड ऐसा होता, डायरेक्टर ये करता तो अच्छा रहता है ना। तो अब ये जो चीज बनावट जी आपने बताया ना, हाँ, ये टेक्निक बहुत पहले से ही में भी, और फिल्म एंड एनी काइंड ऑफ सर, उस केस में तो वो क्यूरियोसिटी की फिल्म की एंडिंग क्या होगी वो मिसिंग है। हाँ, और तो हम ये लोग पहले बहुत से बारी ही ऐसा अटेम्प्ट होता है कर कि जस्ट किया।
मतलब Correct. आइडेंटिफाई द एंड ऑफ द मूवी, हम उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो ये टेक्निक जो है कि आप तय करो इसका एंड क्या होगा, ये कुछ नॉवेल्स में, कुछ फिक्शन में, कुछ फिल्म्स में, कुछ ड्रामा में, लाइक ऑलमोस्ट लेट 19th सेंचुरी से ये टेक्निक अपनाया गया है। नहीं, फिक्शन में तो हो सकता है, लेकिन ड्रामा में कैसे होगा? ड्रामा तो आप स्टेज पे कर रहे हो, वहां दर्शक के ड्रामा सर सूत्रधर आता है और कहता है कि अगर ये नहीं होगा तो आप बोलो कैसे होगा। वो फिर तो नुक्कड़ कोई देता है कि हाँ, आदमी वहां कहता है कि कहीं हो ऐसा होने से सकता है। क्या होगा। अच्छा, होता क्या है, इवन जो फिल्म्स में दिखाते हैं कि आप यहाँ से आप तय करो कैसा होगा। इनफैक्ट ये आप तय नहीं करते हो, वो पहले से ही सोच के 4-5 जो ऑप्शंस अपने पास ही रखते हैं। हाँ, वो बहुत सारे मल्टीपल शूट होता है वो। जी, आपको ऑप्शंस देंगे वो, ये नहीं है कि आपको 10-20 ऑप्शंस आएंगे, फिर आप जी, एक क्लिक करोगे, फिर आगे बढ़ेगा, फिर 10-20 ऑप्शंस आएंगे। तो वो एग्ज़ैक्टली, फिल्म आधे घंटे में खत्म हो सकती है, फिल्म 1.5 घंटे में खत्म हो सकती है। जी। तो ये तो पर्सनल व्यूइंग में ही पॉसिबल है, ग्रुप व्यूइंग में नहीं होगी ये चीजें। नहीं, नहीं, ये सारी चीज़ें ग्रुप व्यूइंग में नहीं, ग्रुप व्यूइंग में क्या आएगा, मानिए कि ओटीटी तो सिर्फ सीरीज़ और फ़िल्म्स भी नहीं है, बहुत सारी डॉक्यूमेंटरीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद कोई नाना पोता को बिठा के दिखाना चाहेगा। हाँ, तो वो नाना पोता तक ही सीमित रहेगा, मोबाइल पे दिखा देंगे वो। अ, हाँ, लेकिन अब जैसा आपने शुरू में कहा कि पिताजी देखना चाहते हैं न्यूज, माता जी हाँ, देखना चाहती है एकता कपूर का सीरियल, बेटा देखना चाहता है वन डे क्रिकेट, बेटी देखना चाहती है कुछ और। तो अब चारों के पास जी, ऑप्शन, अब घर में झगड़ा नहीं होगा उसके लिए। जी, जी। वो आपका वो क्या होता है बट ना, जिससे आपको मुझे लगता है एक टाइम पे, मुझे जो लगता है कि एक टाइम पे आप ये जो पर्सनल व्यूइंग, उबर पर्सनल व्यूइंग के और हम जा रहे हैं, एक टाइम पे आप उब जाओगे। Even the Gen Zs and Gen Alphas, when they grow up, they will probably also get tired of this uber personalization. मेरे ख्याल जब तक अपन उबेंगे तब तक कोई नई चीज आ जाएगी। इसीलिए जहां अखबार के खत्म होने की बात की गई है, टीवी के हाँ, खत्म होने की बात इसीलिए की गई है कि आपके पास इतने ऑप्शंस आ गए हैं। अब टीवी, मुझे बताइए पूरे ग्रुप में यदि आप एनालिसिस करें, मुझे पता नहीं इसमें सर्वे का ऑप्शन है, कितने लोग आजकल टीवी देखते हैं? वही, बिल्कुल, बहुत कम व्यूइंग हो गया है, क्योंकि आपके पास 24 आवर न्यूज आ रही है। आपने पढ़ लिया कि अमेरिका के ट्रंप का बाकायदा आपके पास वो आ गया ट्वीट कि उसने कहा है कि 5 दिन तक ईरान पर हमले नहीं करेंगे, है ना। और ईरान कहता है मेरे से कोई बात नहीं हुई, है ना। तो अब ये आपके पास आ गई, अब क्या टीवी देखोगे आप? सारी खबरें आपके पास है, इमीडिएटली आ गई है आपके पास। आपसे बात सुनते सुनते मैंने पढ़ ली खबरें ये। तो नहीं, वो जो दौर है, मुझे लगता है कि वो तो मैं तो अभी बहस नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो कंटेंट की बात जो ओम प्रकाश जी ने कही ना, मुझे लगता है डेटा, आपने इको चैम्बर की बात कही, आपने एल्गोरिदम की बात की, कंपनीज के पास सारा डेटा है कि आप क्या देख रहे हो, क्या देखना चाहते हो। आपने भी इस बात को exactly. बताया था। तो वो एल्गोरिदम तय कर रहा है सारी सारी बातें आपकी। But all said and done, at one point of time, probably we will get tired of all this and we will want कि कोई मुझे ठीक चीजें ढंग के फॉर्मेट में दे दें, मुझे इतना चॉइस ना करना पड़े। अब यही वो है। ढंग का फॉर्मेट, यही तो, यहाँ तो 16 साल के बच्चों के लिए आप सोशल मीडिया बैन कर रहे हो। अभी मैं कल ही पढ़ रहा था कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने बैन किया। 14 जी, जी, साल की जी, जी, बच्ची जब जी। वो इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट खोल रही है, उसने पूछा एज, उसने लिख दिया 17 और अकाउंट खुल गया। 14 साल की बच्ची 17 ईयर्स का बता के अकाउंट खोल रही है। आपके पास कौन सी डिवाइस है जिससे आप चेक करोगे, है ना। तो अभी तो मुझे लग रहा है पता नहीं क्या क्या दृश्य देखने होंगे आपको। चिंता सबको है, लेकिन जी। सॉल्यूशन क्या है, ये सबसे बड़ी मुझे लगता है कि सर इट्स चैलेंज बेटर है। कि बच्चे अपना रियल ही एज बताएं, मतलब वो एटलीस्ट गलत तो ना लिखे। नहीं, मेरा तो अगर वो दूसरा सवाल है, 40 क्या प्रतिबंध 40, लगा करके आप बचा लोगे क्या पीढ़ी को? हाँ मैं वही कह रही हूँ, इट्स बेटर कि वो अपनी रियल एज बताएं। अगर वो चीजें नहीं है तो वो रियलिटी तो रहेगी, रियल अदरवाइज एज फिर वो। बताएंगे तो अकाउंट नहीं खोल पाएंगे, अकाउंट नहीं खोल हाँ पाएंगे तो एक तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अल्टीमेटली ये बात भी आई है कि सोशियोलॉजिस्ट तय करेंगे, हमारे जो सोशल साइंटिस्ट हैं ये रिसर्च करेंगे, और रिसर्च हमेशा होती रही है ना। टीवी आया तब भी यही प्रॉब्लम थी कि बच्चे बर्बाद होंगे।
टीवी आया तब भी यही कहते थे कि बातचीत खत्म हो गई। 3 घंटे, जैसे आपने कहा टाइम वाली बात, अब मुझे याद है जब हम थिएटर करते थे, शाम को फिल्म आती थी और उस दिन हमने रविंद्र मंच बुक करा लिया, कोई नहीं आता था देखने के लिए थिएटर, सब फिल्म देखते थे। और इंदिरा जी ने अपोजिशन की रैली को फ्लॉप करने के लिए अपोजिशन के उस टाइम पे बॉबी फिल्म चलवा दी दूरदर्शन के ऊपर, ताकि लोग बॉबी फिल्म देखें, जाए नहीं वहां पे। ये भी हथकंडे हमारे यहाँ पर अपनाए गए हैं, है ना। हेलो जी सर, प्रणाम। हाँ, अब ये चीजें नहीं होंगी। अब आपके पास जो फिक्स टाइम है ना, जो आपने कहा कि टाइम की बाइंडिंग नहीं है ना। अब रामायण आता है, अब कर्फ्यू नहीं लगता है शहर में, ऐसा नहीं लगता है हमें। हमारी जब इच्छा होगी देख लेंगे हम, 2 दिन बाद देख लेंगे। हाँ आशीष, कुछ कह रहे हो क्या? हाँ सर, जहाँ तक सर सोशल मीडिया की बात है तो आजकल जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं सर, जैसे मैं अपने एक मामा का ही बेटे का उदाहरण ले रहा हूँ। वो अभी सर मात्र 7-8 साल का है और वो अपना इंस्टाग्राम खोल रखा है, फेसबुक खोल रखा है और उस पर वो वीडियो बना बना करके डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं सर आजकल के आज जो युग है सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम का, सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं बच्चे इंस्टाग्राम के पीछे भाग रहे हैं। वो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके भाग रहे हैं, खाना पीना सब छोड़ करके वो उसके पीछे लगे रहते हैं। और कहीं ना कहीं उन पर सर एक वो जो कमजोरी होता है शारीरिक मानसिक, वो होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन और उनमें चिड़चिड़ापन सर बढ़ता जा रहा है। नहीं, लेकिन तो आप इसको सोचिए, सर वो जो 8 साल का बच्चा यदि वीडियो बना रहा है, वो कितना क्रिएटिव होगा वो, कि 8 साल का बच्चा वीडियो बना रहा है। आप और हम नहीं बना पाते वीडियो, 8 साल का बच्चा बना रहा है, तो वो टेक्नोलॉजी जीत देख ली ना, तो वो क्रिएटिव हो रहा है। और जब उसके लाइक्स आएंगे, व्यूज आएंगे, तो और खुश होगा, वो और काम करेगा कुछ ना कुछ। दूसरा पक्ष। हम सर कितना बार मना करते कि ये सब फालतू की चीजें हैं, पढ़ाई लिखाई करो, ये सब बाद में होता रहेगा। तो भी उसका मन लग गया उसी में, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके वही करता रहता है अभी से ही। चलिए। उन्होंने बैन किया, बोले बंद करो, हाँ बताइए, और तो और ज्यादा। कुछ कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं मृणाल जी? नहीं, कहा था इसलिए आशीष जी ने कहा, कहा कि 16 तक बंद करो, लेकिन बच्चे भी करते रहे, वो भी कर लेते हैं, कुछ करते। देखिए, अभी मैं पढ़ रहा था, फिनलैंड दुनिया में सबसे सुखी देश है। जी सर, इस बार की भी रिपोर्ट आ गई है। 9 साल से हाँ, फिनलैंड हाँ। नंबर 1 पे जी। है ना। वहां भी सोशल मीडिया नियंत्रित है। वहां कोई ये नहीं पूछता आपके पास कितना पैसा है, सोसाइटी कितनी कनेक्टेड है। मुख्य चीज ये है कि आपका आपस में संवाद कितना है, सोसाइटी कितनी कनेक्टेड है। तो वो उस तरह की कुछ वैल्यूज हैं। अब ये छोटे छोटे देश, नॉर्वे और ये फिनलैंड, और बताइए आप, ये नंबर 1 आ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी जिनकी इकोनॉमी है कंट्रीज की, वो सब कितना पीछे हैं। ये मुझे नहीं समझ में आता है जी, कि हमारी कंट्री मुझे लगता है सर लास्ट 2 या 3 दो 3 दो स्टेज ऊपर आई है, दो स्टेज 116। ऊपर बढ़े अपन, अपने से हाँ, बेटर पाकिस्तान है। हाँ, राइट। हाँ, मतलब 2-3 यही दिन पहले ही लिखा, रिपोर्ट आई इसकी। आज तो मैंने यही लिखा कि हम तो ऊपर गए, लेकिन ज्यादा दुखी है यहाँ पे। पाकिस्तान हमसे आगे कैसे बढ़ गया, नेपाल भी बढ़ गया, हम ज्यादा दुखी है। मृणाल जी, आवाज को क्या हो रहा है इसमें, पता नहीं कैसे आवाज वो आ रही है उस तरह से। हाँ, थोड़ी इको हो रही है। हाँ, इको हो रही है यार। हाँ। अभी सर हाल ही में मैं जबलपुर गया था 10 दिन पहले। तो वहाँ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में भी गया था। तो भनावा सर की चर्चा हो रही थी वहाँ पर, हम लोगों वहाँ पर बैठ करके बातचीत हुई अच्छे से। आपके बारे में सर अच्छी चर्चा हुई, कम से कम 10-15 मिनट हम लोगों ने बात किया कम्युनिकेशन टूडे के ऊपर। तो सर लोगों ने वहाँ पे कहा कि सराहना की उन्होंने कि भनावर सर का प्रयास बहुत अच्छा है, कि हम लोग भी बराबर देखते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। वो तुमने बात कराई तो थी ना वहाँ के हेड से, या किसी टीचर से करवाई थी ना बात? जी सर, वो नई दुनिया के वो सर पत्रकार थे और वहाँ पर वो प्रोफेसर भी थे। हाँ, डॉक्टर मोहम्मद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहते। कुछ कहना चाहते हैं मोहम्मद जी? आपका वीडियो ऑन हुआ है अभी? नहीं। चलिए, मेरे ख्याल कोई और टिप्पणी नहीं है, तो अपन इसको अब समाप्ति की ओर ले जाते हैं। मैं अनुरोध करूंगा, इसके पहले कि मैं अनुरोध करूं प्रियंका जी से वोट ऑफ थैंक्स के लिए,
हमारी अगली वेबिनार जो है वो 27 मार्च की है। 27 मार्च आप सब जानते हैं नेशनल थिएटर डे है, और अब की बार मैंने आमंत्रित किया है जयपुर के ही एक कलाकार को, दर्शन दवे, जो फिल्म्स और टेलीविज़न की दुनिया का जाना पहचाना नाम है, और उन्होंने कई सीरियल्स में काम किया है, और अभी उन्होंने जयपुर में अपनी एक एकेडमी खोली है। संयोग से इनकी माताजी हमारे यहाँ म्यूज़िक में प्रोफेसर रही हैं, तो हमारी कलीग रही हैं, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैं उनके घर गया, तो दर्शन दवे से काफ़ी बातचीत हुई, और एक कलाकार का किस तरह का वो, मतलब बहुत लंबे समय तक बात करने का मौका तो मुझे पहली बार मिला इस तरह की सेलिब्रिटीज से। तो उनको फिर मैंने निमंत्रण दिया है, तो वो तैयार हो गए आने के लिए। तो कैमरे से, अभिनय से कैमरे तक की यात्रा, थिएटर से फिल्म की दुनिया तक की जो यात्रा है, इस पर वो बात करेंगे। तो 27 तारीख को उसकी डिटेल्स सोशल मीडिया के थ्रू हम आपको दे देंगे। बाकी समय वही 6 बजे, लिंक सेम जिस लिंक पे आप जुड़ते हैं। तो 27 तारीख को अपन नेशनल थिएटर डे के अवसर पर मुलाकात करेंगे। और फिर इसी से जुड़ा हुआ विषय अगला और है, वो 3 अप्रैल का भी हमने फिक्स किया है। वो बिलासपुर के मास कॉम के टीचर हैं। उन्होंने विषय दिया है कि रीडिंग द फिल्म्स थ्रू लेंस ऑफ नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है, ग्रंथ है भरत मुनि का, जिसमें हमारे पूरा थिएटर का एक तरह से बेस जो है थिएटर। इस नाट्य शास्त्र हमने 2-3 पहले भी किए हैं कार्यक्रम, तो उस पर एक फिर 3 अप्रैल को अपन बातचीत करेंगे इसको लेकर के। तो फिलहाल 27 मार्च याद रखिए, राष्ट्रीय नाट्य दिवस के ऊपर। और अब प्रियंका जी, वोट ऑफ थैंक्स के लिए। At the outset, I would like to express our sincere gratitude to our distinguished speaker, Dr. Om Prakash sir, Director of Rajasthan, DD Rajasthan, Jaipur, and Professor Mrinal Chatterjee sir, former Regional Director of IAMC. Your inside deliberation have truly deepened our understanding of remarkable genre of television over nearly a century and its ongoing transformation in today's rapidly evolving digital landscape. So, the way sir has explained the journey of television, सर ने बताया कि किस तरीके से टेलीविजन OTT प्लेटफॉर्म्स को एक कंपटीशन दे रहा है टू सम एक्सटेंट, और सर ने ये भी बताया किस तरीके से जो स्मार्टफोन्स है, सोशल मीडिया है, वो जो कंटेंट डिलीवरी है उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है एज कम्पेयर टू टेलीविजन। सर ने बताया किस तरीके से जो OTT है वो पर्सनलाइज चीजों को सर्व कर रही है, मतलब मुझे जो पसंद है मैं वो देख सकती हूँ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू टेलीविजन कहीं ना कहीं वो जनरलाइज पे फोकस्ड है। द वे वी हैव सर ने बताया किस तरीके से जो दोनों चीजें हैं, टेलीविजन हमेशा से एक जरिया था जो वो लोगों को साथ लेकर आता था, और हम एक ही चीजों पे डिस्कस करते थे और उसके बाद उसे देखते थे। सो बेसिकली OTT कहीं ना कहीं वो सेपरेट कर रहा है लोगों को, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू टेलीविजन, हाँ अगर मैं वो देख रही हूँ तो मेरी मम्मा भी देख रही है, मेरी दादी भी देख रही है, वो सब लोग बैठ के देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक आउटकम निकल कर आता है, हम चीजें डिस्कस करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू OTT, आई एम पर्सनली वॉचिंग इट, बिकॉज मेरे पास वो सोर्स भी नहीं है कि सारे लोग बैठ के देख पाए एक छोटे से फोन के स्क्रीन से, दैट इज नॉट पॉसिबल एज वेल। सो we have discussed related aspect to that also. A special thanks to Om Prakash sir for sharing your valuable insight for perspective of public service broadcasting and highlighting the relevance of television in regional and national context. सर ने दोनों चीजों के बारे में बताया। Heartfelt thanks to all the participants. Special thanks to Banawat sir and Professor M.N. Huda sir, Director BVI CAM, because ये दोनों हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है, और जिस तरीके से बनावत सर हर टॉपिक के हर वेबिनार के बिगनिंग में एक ब्रीफ और इंट्रोडक्शन देते हैं किसी भी टॉपिक का, मुझे लगता है बहुत सारी टॉपिक की क्लैरिटी वहीं से डेवलप होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद जो बची खुची गुंजाइश होती है वो हमारे स्पीकर्स पूरी कर देते हैं। सर एक इंटरेस्ट बिल्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज उससे पहले हम लोग टू सम एक्सटेंट पूरे दिन की चीजों के बाद ना एक ब्लैंक हो जाता है माइंड कि हाँ ठीक है, उस स्टेट में नहीं रहते कि चीजें अगर पता भी है तो सोचे, बट सारी इनपुट सर एक बारी ऐड ऑन कर देते हैं, कंप्यूटर में इनपुट देने का काम कर देते हैं सर, उसके बाद जो हमारे स्पीकर्स हैं वो आउटपुट देने का काम करते हैं। सो आई गेस ये सारी चीजें हमें बहुत कनेक्टेड बना देती हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव हमें इन्फॉर्म कर देती है, एक अवेयरनेस स्प्रेड करती है। तो थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन, थैंक्स टू द बेकिन टीम, and special thanks to all the participants who have been connected with us through this webinar. Thank you so much. चलिए सर, हमारी ओर से भी बहुत बहुत आभार आप दोनों मित्रों का, और यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी। फिर किसी और ऐसे ही अवसर पर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir.
और जिनके सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं, प्रियंका जी अभी 10 मिनट आपके साथ हैं, वो सर्टिफिकेट जनरेट करने में आपको हेल्प कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।